Welcome students. So today we are going to solve MCQs of rotational dynamics. So let's see first MCQ. When seen from below, the blades of a ceiling fan are seen to be revolving anticlockwise and their speed is decreasing. Select correct statement about the directions of its angular velocity and angular acceleration. Okay. So in first MCQ, we have to find the direction of angular velocity, means omega, and angular acceleration, that is alpha. So there is a fan. Let's consider these are the blades of the fans. Okay. So this is fan and these blades are now moving in anti-clockwise direction. Okay. अभी क्या किया है इस MCQ में, जो प्रॉब्लम है उसमें बताया है कि ये फैन ऑफ किया है. फैन ऑफ करने के बाद उसका स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा, वो मेंशन किया है. और उसका जो मोशन है वो किस तरह से है, एंटी क्लॉकवाइज है. ओके. सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड हियर द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड अल्फा. ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी. अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन. राइट हैंड रूल. अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, सी हियर कर्ल फिंगर्स. ये जो कर्ल फिंगर है ये क्या डिनोट करते हैं, मोशन ऑफ पार्टिकल्स. मोशन ऑफ पार्टिकल्स एंड दिस थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. लेकिन इस प्रॉब्लम में अभी क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन मैंने इस तरह से दिखाया है. तो अभी क्या होगा, यहाँ पे हमें जो एंटी क्लॉकवाइज मोशन लेना पड़ेगा तो वो इस तरह से होगा, क्योंकि मोशन ऑफ पार्टिकल इस डायरेक्शन में है. So curl finger indicates the motion of particle and here the thumb indicates the angular velocity. So basically our angular velocity is in the downward direction. Omega is in the downward direction. सबसे important यहाँ पे क्या आपको समझना चाहिए कि ये जो फैन है इसको हम क्या कर रहे हैं, seeing from below. हम नीचे से देख रहे हैं उसको. नीचे से जब ऑब्जर्व करेंगे आप तब आपको ये एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट दिख रहा है. तो यहाँ पे पार्टिकल का जो मोशन है वो कर्ल फिंगर और ये जो थंब है दैट विल एंगुलर वेलोसिटी. और एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, हमें अल्फा मिलेगा. क्यों अपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज हियर स्पीड इज डिक्रीजिंग. इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग then the direction of both these components will in a same direction. जहाँ पे स्पीड इंक्रीज होगा तहाँ वहाँ पे क्या होगा, ओमेगा और अल्फा will be in a same direction. But in this case speed is decreasing, therefore angular velocity is in downward direction and alpha will be in a upward direction. So how you can write this, angular velocity means omega is in downward direction and angular acceleration alpha is upward direction. Okay, so our option number B is correct. So first MCQ option B is correct. Which law we are using here, right hand thumb rule. Okay, so ये जो right hand thumb rule है ये हमने यूज किया यहाँ पे. तो angular velocity downward direction and alpha is in upward direction. Now let's see second MCQ. A particle of mass 1 kg tied to a 1.2 meter long string is whirled in to perform vertical circular motion under gravity. Minimum speed of particle is 5 meter per second. Consider following statements. So first I will write what they have given us. Number 1, mass is 1 kilogram. Radius is 1.2 meter.
मिनिमम वेलोसिटी है, v मिनिमम है, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड. सो बेसिकली देयर आर टू कंडीशंस. ओके, ये p एंड q, ये दो कंडीशन हमें मेंशन किए हैं. मैक्सिमम स्पीड मस्ट 5√5 मीटर पर सेकंड, जो v मैक्स है, सो दैट शुड बी 5√5 मीटर पर सेकंड. ओके, and our q condition is difference between maximum and minimum tensions. So let's consider T max minus T mean is 60 Newton. ये जो दो कंडीशन हमें यहाँ पे मेंशन किए हैं. So the options are only the statement P is correct, only the statement Q is correct, both the statements are correct, both the statements are incorrect. तो ये जो चार ऑप्शन हैं वह हमें फाइंड करने का है कौन सा राइट है. सो बेसिकली हियर द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन. अभी हमें मालूम है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट. यहाँ पे पार्टिकल विद द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी परफॉर्म्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन. यहाँ पे एक टॉप पोजिशन है, लेट्स कंसिडर ए. यहाँ पे बॉटम दैट इज बी, दिस इज सेंटर. ओके, सो यहाँ पे जो स्पीड होगा, मैक्सिमम स्पीड कहाँ रहता है, नीचे रहता है v मिनिमम. यहाँ पे क्या होता है v, यहाँ पे क्या रहता है v मैक्सिमम, और यहाँ पे क्या रहता है v मिनिमम. बिकॉज वी नो दैट एट हाईएस्ट पोजिशन √rg, एट बॉटम पोजिशन √5urg. ओके, सो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ मिलता है हमें, बॉटम कंडीशन, बॉटम स्टेट में. ओके, बॉटम पोजीशन में. फर्स्ट यू कैन फाइंड डायरेक्टली बाय √rg एंड बाय √5urg. सी अभी ये दो कंडीशन है, फर्स्ट एंड p एंड q. अभी v मैक्स के लिए मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ √5urg, लेकिन नहीं यूज कर सकते इस कंडीशन में. क्यों नहीं यूज कर सकते, जो हमें फॉर्मूले मालूम है, यहाँ पे √rg, यहाँ पे √5urg. दीज आर द कंडीशंस फॉर द मिनिमम वैल्यूज. मिनिमम वैल्यूज जो है टॉप और बॉटम पोजीशन के लिए, उसके बारे में है. एज कंपेयर टू दीज टू वेलोसिटीज, दैट्स फाइन, इट्स मिनिमम वेलोसिटी एंड दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी. बट दीज कंडीशंस आर द फॉर मिनिमम केस. जो मिनिमम वैल्यूज का केस होता है उसके लिए वो कंडीशन रहता है √rg, √5urg. सो वी कांट यूज दिस कंडीशन हियर. सो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड v मैक्सिमम? सो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द टोटल एनर्जी एट टॉप पोजिशन विल इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट बॉटम पोजिशन. लेट्स यूज दिस. टोटल एनर्जी एट पोजिशन A is equal to total energy at B. What is formula? So here let's try to understand. First we have to take total energy is kinetic energy plus potential energy. Here also kinetic energy plus potential energy. Okay, यहाँ पे क्या होगा, A होगा, यहाँ पे क्या होगा B. माइंड में ये क्लियर रखो कि A जो है ये है हाईएस्ट पोजीशन. हाईएस्ट पोजीशन को वेलोसिटी कंसिडरेशन क्या है, मिनिमम वेलोसिटी बिकॉज ऑफ √rg. B जो है बॉटम पोजीशन. मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला वर्टिकल सर्कुलर मोशन का √5urg. सो ये तो हमें ध्यान में रखना ही होगा. सो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा 1/2 mv² प्लस mgh. यहाँ पे भी 1/2 mv² प्लस mgh. फाइन. नाउ सी हियर, टॉप पोजिशन A, velocity is minimum, so I will write here v minimum, here v maximum. Okay, now see here 1/2. Okay, so mv minimum square plus now mgh. see here, यहाँ से यहाँ क्या होगा, रेडियस होगा. यहाँ से यहाँ भी एक रेडियस होगा. सो बेसिकली हियर हाइट कितना होगा, 2r होगा.
यहाँ पे कितना होगा, हाइट 0 होगा. At top position h is equal to 2r. Okay, where r is radius, so you have to write mg into 2r. Here 1 by 2 m v square max, and here this value is 0. क्यों है 0 यहाँ पे? mg into h, h का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0 है. ओके, ये जो बी वाला कंडीशन है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों लिया मैंने? क्योंकि mg into 0 that will be 0 because h is 0 here. So now we will put the values here. half m का वैल्यू है 1, v स्क्वायर मिनिमम अभी डायरेक्टली आपको पुट कर सकते हैं, क्या है 25. ओके, प्लस मास यहाँ पे कितना होगा 1 इंटू जी 10 इंटू 2 इंटू आर का वैल्यू है 1.2. सो हियर 1 by 2 into 1 into v square max. I hope you are getting it clearly. Okay, fine. So now, okay, so let's see, just divide it by 2. This will be 12.5. okay, ये है 12.5 मिला है, प्लस ये 10 into 1.2 क्या होगा 12 होगा, 12 into 2 क्या होगा 24 होगा, 24 into 1 क्या होगा 24 होगा. सी once again, 10 into 1.2 that is 12, 12 into 2 that is 24. okay, 24. So 24 into 1 that is 24. So I will write here 24, and here is, okay, 1 by 2 है, 1 by 2 into 1 that is half into v square max. Now this 2 will go here. 12.5 plus 24 कितना होगा 24 plus 12 that is 36.5 means 36.5 is equal to v square max. okay, fine. So 36.5 into 2, 36.5 into 2 क्या होगा 36 के डबल क्या होता है 72.5 है 0.5, so it will be 73. So this will be 73. Here v square max, take the square root. So we have v max is equal to root 73. मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू कितना चाहिए √73 चाहिए है. क्या दिया है 5√5 दिया है. सो दिस इज नॉट वी आर गेटिंग. सो √73 इज नॉट इक्वल टू 5√5. सो बेसिकली आवर फर्स्ट कंडीशन इज रॉन्ग. ओके, सो लेट्स चेक आवर क्यू कंडीशन. कंडीशन क्यू में क्या है टी मैक्स माइनस टी मिनिमम. व्हाट इज दिस? The difference between tension at maximum and tension minimum, so it will be 6 mg. इसका जो फॉर्मूला है वो हमने ऑलरेडी डिराइव किया है, आप देख सकते हैं उसका सॉल्यूशन अवेलेबल है. सो 6 mg. सो नाउ पुट द वैल्यू 6 into 1 into g का वैल्यू 10. सो दिस विल बी 60 न्यूटन. सो ओके, दिस इज राइट. सो इन केस of P and Q, only Q condition is we are getting correct. So the answer from your given option क्या होगा? Only the statement Q is correct. So option number B. Okay, only the statement Q is correct. Okay, फर्स्ट एंड सेकंड MCQ का आंसर क्या मिला है हमें? B ही मिला है. नेक्स्ट MCQ. नंबर 3.
Let's see number 3rd. Select correct statement about the formula expression of moment of inertia in terms of mass capital M of object and some of its distance parameters such as r, l, etc. Okay, r क्या होता है, रेडियस, l क्या है, एंगुलर मोमेंटम. So number A is different objects must have different expression for their moment of inertia. तो यहाँ पे क्या बताया है, जो नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हैं, in case of moment of inertia which option is correct, that they are asking. Different objects must have different expression for their moment of inertia. That is not necessary. Okay, जो सब ऑब्जेक्ट्स है सभी का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना ही चाहिए, ऐसी कुछ कंडीशन है क्या? नहीं है. जैसे कि होलो रिंग है, ओके, एक आधा रिंग है और एक आधा नॉर्मली क्या होता है, होलो सिलेंडर रहता है, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, mr² आता है. रिंग और होलो जो सिलेंडर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेम है. और इस ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेम होता है. सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग. नंबर बी, when rotating about their central axis, a hollow right circular cone and a disk have the same expression for the moment of inertia. Let's see this. So here is a hollow circular cone. So cone इस तरह से हम निकालेंगे. ओके, दिस इज hollow circular cone. यहाँ से सेंटर में से एक एक्सिस पास हो रहा है. सो ये जो है सर्कुलर होलो सर्कुलर कोन, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mr². ओके, एंड अ डिस्क हैव द सेम एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अभी यहाँ पे मैं निकालूंगा ये डिस्क. ओके, सो लेट्स ड्रॉ दिस डिस्क. अभी ये जो डिस्क है यहाँ पे सेंटर, ओके, इसके लिए भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ mr². सो बोथ दीज आर हैविंग सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये फॉर्मूले ऑलरेडी हमने यूज किए हैं. सो बेसिकली दिस ऑप्शन इज करेक्ट. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, ऑप्शन बी में जो बताया था कि होलो सर्कुलर कोन एंड जो डिस्क है उन दोनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या है, सेम है. दैट इज राइट. अभी 3rd और 4th कुछ देखने का ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. लेकिन हम देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर द mi फॉर पैरेलल रोटेटिंग अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इंक्लूड्स इट्स डेप्थ. ओके, जो पैरेललेपिप्ड है रोटेटिंग अबाउट ट्रांसफर एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इंक्लूड्स इट्स डेप्थ, वहाँ पे सिर्फ क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेड्थ मेंशन किया होता है, डेप्थ नहीं होता है. ऑप्शन नंबर डी, सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग. ऑप्शन डी, एक्सप्रेशन फॉर mi ऑफ रॉड क्या होता है, mi ऑफ रॉड ml²/12 होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, एंड दैट ऑफ अ प्लेन शीट इज सेम एज अबाउट अ ट्रांसवर्स एक्सिस. सो दिस इज रॉन्ग. सो ऑप्शन सी एंड डी इज रॉन्ग. सो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन. जो हमने 3 MCQ देखे हैं, तीनों का जो ऑप्शन है नंबर बी, दैट इज करेक्ट ऑप्शन. लेट्स सी नंबर 4. So this one is important. In a certain unit, the radius of gyration of a uniform disk about its central and transverse axis is √2.5. So जो रेडियस ऑफ गायरेशन k से डिनोट करते हैं अबाउट सेंटर, दैट इज √2.5. दैट इज गिवन. इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन मस्ट बी. तो अभी हमें क्या करना है, kc का वैल्यू दिया है, kt का वैल्यू हमें क्या करने का है, फाइंड करने का है. ओके, सो kc इज गिवन, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ kt. See, first we have to draw the diagram. This is what disk. ये जो है डिस्क से रिलेटेड सब चालू है. ओके,
So this is the axis passing through its center. Now this is axis which is passing through its, ये क्या है, डायमीटर है, डायमीटर से जा रहा है. ओके, सो लेट्स कंसीडर दिस इज ID, दिस इज IC, एंड अभी यहाँ मैं टेंजेंट निकाल रहा हूँ. टेंजेंट के लिए क्या लिखेंगे हम, IT. सी हियर, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड IC इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. ये D है, ये डायमीटर है, ये जो T है दैट इज टेंजेंट. वी हैव टू फाइंड KT. KT means radius of gyration about its tangent. That value we have to find. So first I am going to use perpendicular axis theorem. दो थ्योरम है हमारे पास, पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस. ये IC और ID, इन दोनों के लिए हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वी हैव ID is equal to IC by 2. By using perpendicular axis theorem, we have ID is equal to IC by 2. So here you can write ID का जो वैल्यू है क्या होगा, MKD स्क्वेयर. IC का वैल्यू क्या होगा, MKC स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2. MM will get cancel. So from this take the square root. KD is equal to KC by root 2. See here, KD स्क्वेयर था, उसका स्क्वायर रूट KD, KC स्क्वेयर था, उसका स्क्वायर रूट KC, and this is root 2. So this is important which we are going to use further. So KD is equal to we have KC by root 2. ये वैल्यू एक important वैल्यू मिला है हमें. Now another condition is there. See here, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट वी विल स्टार्ट अबाउट पैरेलल एक्सिस. नाउ फॉर दिस वी हैव टू यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ओके, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अभी हम जब यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, IT इज इक्वल टू ID प्लस MH स्क्वेयर. सो फॉर दीज टू एक्सिस वी आर यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सो नाउ बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अभी यहाँ पे के मेंशन किया है तो आपको MK स्क्वेयर फॉर्मूला यूज करना पड़ता है. तो यहाँ पे क्या होगा, MKT स्क्वेयर इज इक्वल टू MKD स्क्वेयर प्लस MH का क्या है, स्क्वेयर है. तो यहाँ पे H इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस दैट इज R. थ्योरम ने हमने देखा था कि H इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस. कितना है यहाँ पे डिस्टेंस, R होगा. ओके, सो हियर M इज कैंसल. नाउ वी हैव KT का स्क्वेयर इज इक्वल टू KD स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर. फर्स्ट राइट डाउन दिस केयरफुली. ओके, सो अभी हमको मालूम है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है फॉर अ डिस्क that is mr square by 2, and in case of radius of gyration we have to write MKC square. So this will be mr square by 2. This will get cancel, means KC square is equal to R square by 2 है. वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, R square is equal to 2KC square. So this value we are going to put here. सी फर्स्ट हमने क्या निकाला था, ये KD निकाला था. ये KD का वैल्यू पुट करेंगे, क्या होगा, KC बाय रूट 2. सो वी हैव टू राइट KC का स्क्वायर बाय 2. KD स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, KC का स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय 2. और R स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 2KC स्क्वायर. 2KC स्क्वायर, यहाँ पे है KT का स्क्वायर. Now you can do here cross multiplication. 2 into 2 4, 4 plus 1 that is 5 by 2 KC square. 5 by 2 KC का स्क्वायर. सी 5 by 2, 5 by 2 क्या होता है, what is 5 by 2, 2.5. ओके, 2.5 इसका डिवीजन करो, 2.5.
के सी का स्क्वायर क्या है, सी हियर के सी का वैल्यू ये है, इसका करो स्क्वायर, कितना होगा, √2.5 का स्क्वायर कितना होगा, 2.5 होगा. सो हियर इट विल बी 2.5. So here we have a kt square. So kt square is equal to 2.5 का क्या मिला है, हमें स्क्वायर मिला है. लेकिन हमें क्या फाइंड करने का है, सिर्फ kt फाइंड करने का है. सो नाउ टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस. सो वी हैव kt is equal to 2.5. सो दिस इज अवर आंसर. क्या मिला है आंसर, 2.5. So once again I will explain you. See, according to the perpendicular axis theorem, ID is equal to IC by 2. Now from this we got KD. KD is KC by √2. Now we are using the parallel axis theorem here. So after parallel axis theorem, this MM get cancelled. We have KT square is equal to KD square plus R square. Now just put the value of KD from this here. एंड फ्रॉम दिस पुट 2kc हियर. ओके, ये आर स्क्वायर का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला था. अभी यहाँ पे आगे तो इजी है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, आपको 2.5 वगैरह यहाँ पे पुट करने का है. सो वी हैव के टी इज इक्वल टू, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट टेंजेंट, 2.5 इज अवर आंसर. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी. B, B, B. 4 times we got B. Okay. So जो 4 ही MCQ है, उसका जो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हमें जो मिला है वो क्या है, ऑप्शन नंबर B. That is 2.5. Now let's see number 5. So number 5, consider following cases. So in number 5 they are asking us 2 cases are also given, similar problem, means P and Q, we have to check which P is correct, Q is correct, P or Q correct. Okay, like that. So first condition, that is P, a planet revolving in an elliptical orbit. Okay, सो प्लैनेट है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, यहाँ पे सन होगा, यहाँ पे प्लैनेट होगा. ओके, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द इलिप्टिकल ऑर्बिट. नंबर क्यू जो है, अ प्लैनेट रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. अभी जो प्लैनेट यहाँ पे जो बताया है कंडीशन क्यू, दैट इज हियर सन, and your planet is revolving circular orbit. ये कौन सा ऑर्बिट, इलिप्टिकल. ये कौन सा है, सर्कुलर ऑर्बिट. ये P एंड Q कंडीशन दिया है. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कम्स इन द फोर्स इन विच ऑफ दिस. ओके, सो ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर as only for P, only for Q, both P and Q. Okay, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जब टॉर्क क्या होगा, 0 होगा, dl/dt इज इक्वल टू टाउ, ये जो फॉर्मूला हमने लिया था, जब टॉर्क 0 होगा, एंगुलर मोमेंटम जब 0 होगा, तब वहाँ हम क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, ये बोल सकते हैं. सी हियर, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लैनेट इज रिवॉल्विंग, ओके, इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लैनेट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. सो अकॉर्डिंग टू केपलर्स सेकंड लॉ हमने देखा था, जो सेकंड लॉ में क्या होता है, dA/dt. ओके, जो एरियल वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई होगा. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि प्लैनेट इज रिवॉल्विंग हियर इन सर्कुलर ऑर्बिट. सर्कुलर ऑर्बिट में आप क्या करेंगे,
कौन सा एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला लेंगे? L इज इक्वल टू m इंटू वी इंटू आर, वेर m इज द मास ऑफ प्लैनेट, v इज द स्पीड एंड r इज द रेडियस. सब कांस्टेंट है वहां पे भी. सो इन बोथ द केसेस द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल अप्लाई. सो which option is correct for both P and Q? Okay, so principle of conservation of angular momentum होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर C is correct for both P and Q. Okay, so क्या पूछा था हमें कि principle of conservation of angular momentum comes in force in which of these? So for both P and Q, जब इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी होगा तभी भी हमें क्या मिलेगा? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. और यहाँ पे भी क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. नेक्स्ट वन, नंबर 6. A thin-walled hollow cylinder is rolling down an incline without slipping. At any instant, ratio of rotational kinetic energy, translational kinetic energy and total kinetic energy is. So सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे? कौन सा बॉडी कौन सा दिया है? Thin-walled hollow cylinder. Okay, so thin-walled hollow cylinder. So for that we have to find the ratio of तीन काइनेटिक एनर्जी है. ओके, सो देर आर 3 काइनेटिक एनर्जी. फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी कौन सा दिया है? रोटेशनल. ओके, नेक्स्ट कौन सा है? ट्रांसलेशनल. एंड दिस इज टोटल. ओके, यहां पे अभी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पुट करना होगा. दैट इज 1/2 I omega square. Translational kinetic energy means you have to put the formula that is half mv square. जब linear motion होगा वही translational में लेंगे हम, half mv square. And in case of total kinetic energy, rolling motion में हमने देखा था कौन सा है total kinetic energy? Because your body is rolling without slipping. That condition is given, so we have to use half mv square 1 plus k square by r square. Okay, so we have half I का जो फॉर्मूला है. ओके, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओमेगा स्क्वायर क्या लेंगे? v स्क्वायर बाय r स्क्वायर. और जो I का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, वो बॉडी कौन सा है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सा बॉडी कौन सा मेंशन किया है हमें? थीन वॉल्ड होलो सिलेंडर. ओके, फॉर थीन वॉल्ड होलो सिलेंडर I is equal to mr स्क्वायर. रिंग का जो फॉर्मूला है mr स्क्वायर, that formula and this formula both are same, so we have to use I is equal to mr square. ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? v by r, क्योंकि हमने देखा था v is equal to क्या है? r ओमेगा. so ओमेगा is equal to v by r. यहाँ पे स्क्वायर है, so v square by r square. now here half mv स्क्वायर. ओके, यहाँ पे क्या है? हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस सी नाउ k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. सो इन केस ऑफ दिस इक्वेशन यू कैन सी I इज इक्वल टू, आप क्या ले सकते हैं? m k स्क्वायर. दिस m r स्क्वायर, this mm will get cancel, so k square is equal to r square. so k square divided by r square will be 1.
यहाँ पे क्या होगा फिर 1 होगा. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू कैंसल हियर, r square cancel. So we have half mv square, half mv square, and here is also half mv square into 2. यहाँ पे सब जगह क्या है, हाफ mv square, that will get cancel. So finally we have here 1, here is also 1, and here is 2. So our ratio of these three kinetic energy is 1:1:2. Okay, क्या है आंसर, 1:1:2. So option A is correct. Okay, so option A is correct. 1:1:2. Okay, so these are the MCQs about rotational dynamics. I hope all the MCQs are clear. Now see, I have uploaded all the problems of rotational dynamics and MCQs in one playlist of our YouTube channel, so you can watch that. And also we uploaded the MCQs and problems of mechanical properties of fluids. रोटेशनल डायनामिक्स के सभी जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है उसके MCQs, उसका एक प्लेलिस्ट में हमारे फोल्डर है, वहाँ पे आप वो मिल सकते हैं आपको. उस तरह से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के सारे जो प्रॉब्लम्स है अनसॉल्व और जो MCQs है वही भी अवेलेबल हैं. सो watch these and share with maximum students. Okay, thank you very much.